اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا. ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا. بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیملین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی. مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا. جناب میکسیملین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے. وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے. میں نے جناب میکسیملین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا. وہ بہت تیز فہم تھے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا. اور جناب میکسیملین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی. روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی. گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فیلاڈیلفیا بھیج دیا. آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. آئیے. جناب میکسیملین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فیلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں. وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیملین سے کر دی تھی تاکہ وہ فیلاڈیلفیا میں رہ جائیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بانو ہیلن بھی موحد میں سے ہوتی. کیا یہ سچ ہے کہ میکسیملین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے. وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے. کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی. ہاں، وہ ہمیشہ فیلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے. میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے. دقیانوس کی مالیات. بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو. نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو. نہیں نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں. کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس. بول، زبان کھول. بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ. سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے. لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ. جلدی 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 لے کے آؤ. سب جمع کرو، جلدی جلدی لاؤ. ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا. ادھر. ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جلدی لاؤ، جلدی کرو. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا.
नहीं देना चाहता या उसके पास नहीं है? इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग मालियात उसूल करने आए हैं, ना कि गरीबों की मदद के लिए। ना मालूम। रिहा कर दो इसे। ए, रुक जाओ। अली जनाब, आप कौन हैं? एक छोटा अफसर अपने बड़े अफसर की इताअत करता है, सवाल नहीं। छोड़ दो इसे। मैं यहाँ पर आली जनाब दकियानूस के हुक्म से मालियात उसूल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तुम्हें शायद सीधी बात समझ में नहीं आती। लगता है आप नाजो नेमत से पले हैं। मेरे ख्याल से आपको दूसरी जबान नहीं आती। ये लीजिए। मार डालो। इसको जिंदा मत छोड़ो। मार डालो इसे, मार डालो। जिंदा मत छोड़ो। जिंदा मत छोड़ो। इसने हमें बहुत सताया है। इसे मत छोड़ना। बहुत सताया है। इसे मार डालो। वक्त मिल गया ना, तो अपने साथियों को लेकर निकल जाओ यहां से। आली जनाब, आली जनाब, आली जनाब, खुदा की पनाह, तुम्हारी शामत आ गई है। जानते हो ये मैक्सिमिलियन दकियानूस के दामाद हैं। सब छोड़ दो यहाँ पे, जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो, ए चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ। हटो, चलो, रास्ता दो, चलो चलो, जल्दी चलो। मैक्सिमिलियन का यह हादसा उस रोशन ज़मीर बूढ़े के साथ वाकफियत का सबब बन गया। जनाब मैक्सिमिलियन सख्त बीमार हो गए थे और बूढ़ा आदमी जो अपने आप को इस हादसे का सबब समझता था, वो जनाब मैक्सिमिलियन को अपने घर ले गया। बहुत मेहनत और महारत के साथ जनाब मैक्सिमिलियन का इलाज किया। नहीं नहीं,
ہلنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کے لیے آرام ضروری ہے. کیلس. جی علی جناب، میں یہاں ہوں. میری نانی سے ہیلن پریشان ہو رہی ہوگی. میں شہر جا کر ان کو بتا دوں گا. آپ آرام کریں، آپ فکر نہ کریں علی جناب. دل میں خواہ یوں ہے، سے بھی کہہ دو کہ حالات کے اوپر نظر رکھیں. اگر دقیانوس میرے بارے میں کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ قرب و جوار کے علاقے میں دورے پہ گئے ہوئے ہیں. اطاعت میرے مالک، آپ فکر نہ کریں. میں جلد پلٹ آؤں گا. علی جناب کا خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد میں جناب میکسیملین اور اس خدا پرست بوڑھے کے درمیان تعلقات کا سبب بنا. اس زخم کی اچھی طرح پٹی ہوئی ہے. معاف کیجیے، میں اس سے زیادہ علی جناب کی مدد نہیں کر سکا. بہت اچھا ہے. کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے باپ دادا سے. اگرچہ رومی علم سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کس نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے علی جناب. سینکڑوں سال سے یہ رومیوں کے تازیانے جو انسانیت کو زیب نہیں دیتا ہم پر برس رہے ہیں. اب ہمیں عادت ہو گئی ہے. ایک رومی کی حیثیت سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم رومی اپنے آپ کو دنیا کے متمدن ترین انسان سمجھتے ہیں، جبکہ وحشیانہ ترین اعمال انجام دیتے ہیں. نہیں، آپ لوگوں اور بقیہ رومیوں میں بہت فرق ہے. لیکن ہم لوگ بھی بقیہ رومیوں کی طرح ہیں. کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آتا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ پوچھئے جو پوچھنا ہو. علی جناب نے اس رومی افسر کی مدد کے بجائے اس کا مقابلہ کیوں کیا؟ خود مجھے بھی نہیں معلوم. بس اتنا جانتا ہوں کہ ظالموں کے جھنڈ میں نہیں ہونا چاہتا. شاید قدرتی طور پر پیدائشی میں ایسے ہی بنا ہوا ہوں. لیکن حب دنیا اور اس کی لذتیں بھی ایک باطنی خواہش ہے. آپ اس باطنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے پاس اپنے نیک و بد اعمال کے لیے کوئی دلیل ہے؟ میں کسی بھی کام کو دلیل کے بغیر انجام نہیں دیتا. مجھے یقین ہے کہ اپنے تمام اعمال کی اجرت چاہے اچھے ہوں یا برے ضرور پاؤں گا. اگر اس کے خلاف ہو تو میرے لیے زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تم اپنی نیکیوں کا صلہ کس سے لوگے؟ آپ کا غلام یا نوکر اپنی اجرت کس سے لیتا ہے؟ اپنے مالک سے. اپنے مالک سے. آپ سے. میں بھی اپنے مالک سے لوں گا. ہر کسی کا ایک مالک ضرور ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اجرت اپنے خدا سے لیں گے؟ میرے خیال میں بھی نیکیوں کے لیے اس سے بہتر جذبہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں کہ اپنے اعمال کی اجرت ان خداؤں سے مانگوں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن وہ کیسا ہے نہیں معلوم. میرا خدا میرا خالق ہے، لیکن آپ لوگوں کے خدا یعنی رومیوں کے خدا تو انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. نہیں، میں تمہارے خدا پر بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم یہودی ہو تو اپنے قوم کے خاص خدا کی پرستش کرتے ہو، اور تمہاری توریت میں نے پڑھا ہے کہ تم لوگ
अपने पैगंबरों से बुरे बुरे आमाल मंसूब करते हो। मैं कैसे उस खुदा को मान लूं जो आसमान से जमीन पर आता है, अखाड़े में उतरता है, अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है और उसमें हार भी जाता है। हाँ, अगर तुम मसीही हो तब भी तुम्हारे खुदा पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा खुदा रोमी खुदाओं की तरह औलाद रखता है और महदूद है। ये तुम्हारी इंजील में लिखा हुआ है। जिस खुदा का आपने जिक्र किया है वो मसीही मजहब के तबलीग करने वालों और उनके पैरोकारों का बनाया हुआ खुदा है, न हजरत मसीह। उन्होंने रूमियों को मसीही बनाने के लिए मसीह के आसमानी दीन को रूमियों के जमीनी दीन से मुशाबहत दी है। बूढ़े ने जनाब मैक्सिमिलियन के लिए एक पुरानी इंजील की बात की, लेकिन उस वक्त मैं इन सब बातों को समझ नहीं सका। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने अकीदे को आप पर वाज़ेह कर दूं। मैं एक मुवहिद हूं और खुदाए वाहिद की परस्तिश करता हूं। मेरे पैगंबर हजरत मसीह है, न कोई और। तो क्या पैगंबर मसीह का खुदा दूसरे मसीहियों के खुदा से मुख्तलिफ है? खुदाए मसीह तमाम पैगंबरों का खुदा है और उस आखिरी पैगंबर का खुदा है जो बाद में आएगा। इसके सिवा अब जो कुछ है वो हमारे जहन की पैदावार है। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या इसको साबित करने के लिए दलील भी है? दलीलें बहुत सी हैं, लेकिन बेहतरीन दलील वो तहरीर है जिसको जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बूढ़े ने बारनवास की इंजील जनाब मैक्सिमिलियन को दिखाई और उन्होंने उसको उस वक्त तक बंद नहीं किया जब तक उसका एक एक सफा न पढ़ डाला। जनाब मैक्सिमिलियन बूढ़े के घर से उस वक्त निकले जब इंजील की एक नकल अपने हाथ से लिखकर तैयार कर ली। वो हादसा और किताब सबब बने कि जनाब मैक्सिमिलियन ईसाई बन गए। हमको भी अपने मजहब का पैरोकार बना लिया। गैलिस सचमुच के जनाब मैक्सिमिलियन खुदा के मुकर्रब बंदों में से हैं। एक मरतबा मुझसे कह रहे थे कि जो कुछ हजरत ईसा ने फरमाया है और आज उनके मानने वाले कहते हैं, उसमें फर्क इतना है जितना ये ऊंचे तनावर दरख्त में और जमीन के ये पौधों में है। पास फूल दूर से भी महकते हैं और मैक्सिमिलियन उनमें से हैं। हमें उम्मीद है कि रूमियों से हमारा राबिता अटूट हो। आली जनाब, इजाजत दीजिए कि यहूदी कौम के तोहफे पेश करें। हाँ, ये नाचीज तोहफे शहनशाह और उनके नुमाइंदे और जानशीन जनाब दखियानूस से यहूदियों की दोस्ती की अलामत है। हम भी आपके काबिल कदर तहाइफ को दोस्ती की अलामत समझते हैं। वो मुआहिदा जो शहनशाह और यहूदी कौम के सरबराहों के दरमियान यरूशलेम में हुआ था, हम पर फर्ज आयद करता है कि जनाब के साथ करीबी ताउन करें और शहनशाह के इस्तकबाल के जश्न में हम भी अपने तौर पर शरीक हों। शहनशाह की रियाया से हमें भी यही तवक्को है। और हाँ, हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों को
اپنے عبادتی اور تجارتی مسائل میں مکمل آزادی دیں۔ در حقیقت عوام کے لیے سہولتوں اور آسائش کی فراہمی رومی شہنشاہت کے فرائض میں ہے۔ عوام کا ایک حصہ وہ ہے جو دوسروں کے آرام کو درہم برہم کرتا ہے۔ رومی اور رومی خداؤں سے غداری، میں یہ بتا دوں کہ ان سے ہماری نہیں بنتی اور ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے۔ جناب کا مقصد کیا عیسائی ہیں؟ ہمیں بھی ان سے اذیت ہوئی ہے۔ انہوں نے جھوٹے پیغمبر اور جعلی کتاب کے ذریعے ہمارے اندر رسوخ پیدا کیے اور یہودی مسلک کے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ عالی جناب، میرے خیال میں عیسائیوں سے مقابلے کے سلسلے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قریبی تعاون کر سکتے ہیں۔ سپاہی، آپ اس طرف سے جلدی کرو۔ نیچے لاؤ، اور نیچے، اور نیچے، آرام سے، آرام سے نیچے لاؤ۔ بس کرو، بس کرو۔ چلو چلو، تم جا کر تانگا لے آؤ۔ لو یہ چادر ڈال دو اس پر تاکہ لاش کا پتہ نہ چلے۔ مگر اس لاش کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قبرستان میں تو معلوم ہو جائے گا کہ تازہ دفنایا گیا ہے، ممکن ہے اس پر ظلم و ستم اور بڑھ جائے۔ بہترین جگہ اس کے باپ سینٹس کا مکان ہے۔ نہیں، پہلی جگہ جہاں تلاش کریں گے وہی ہے۔ بہتر ہے اسے جنگل میں لے جائیں، ہر جگہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ چلو رکھو، آرام سے، چلو جلدی کریں، جلدی چلو، جلدی چلو، چلے۔ ٹھہر جاؤ، معاف کیجیے گا علی جناب، راستہ صاف کرو۔ خداوندہ پلوٹن کی روح کو مومنین اور صالحین کے زمرے میں قرار دے۔
रसवाई की बात है नाअहलो, रसवाई है। एक जेर निगरानी मुजरिम को भगा ले जाते हैं और एक मुजरिम की लाश को हमारे नजरों के सामने उड़ा ले जाते हैं। और तुम शहर की अमनियत के खास जिम्मेदार ने क्या किया? सिर्फ खबरें सुनाने के लिए रह गए बस? मैं अपना फर्ज जानने और मजीद इख्तियारात हासिल करने हाजिर हुआ हूँ अली जनाब। कान खोल कर सुन लो जूलियस, तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ शहंशाह की फिलाडेल्फिया पहुंचने से पहले। अडोनिया और पुलूटन की लाश को तलाश कर लो, वरना खुद तुमको अडोनिया की जगह सलीब पर लटका दिया जाएगा। पुलूटन की लाश चुराने और अडोनिया को नजात दिलाने वालों को भी तुमसे लूंगा। तो अदुनिया फरार हो गया कि पहले दिन अदुनिया की कूजागरी ही हमारी तवज्जो का मरकज बनी थी। खुशामदीद अली जनाब। तुम तो बड़े माहिर कूजागर हो। लगता है आप हजरात हाल ही में फिलाडेल्फिया तशरीफ लाए हैं। हाँ, हम हाल ही में रूम से आए हैं। दक़े अनूस के मुशीर हैं। जरूर आप में से कोई अली जनाब सोडिनेनेस है। जी, ये है। आपको कैसे मालूम? खबरें बहुत जल्द शहर में फैल जाती हैं, खास तौर से शहर के नए नाज़िम आला की तकर्रुरी। मुझे खुशी है कि आप हजरात ने अपने कुदूम से मेरे कारखाने को मुज़य्यन फरमाया। मैं तुमसे ये कूजा खरीदना चाहता हूँ। आप रोम के आला खानदान के शुराफा, जिन्होंने रोम और उसकी तमाम रानाइयों को और माहिर फनकारों के शाहकारों को अपनी आंखों से देखा है, जाहिर सी बात है कि फिलाडेल्फिया के किसी गोशे में किसी गुमनाम फनकार का काम भला आप हजरात को क्या पसंद आएगा? ऐसी बात नहीं है। जाहिरन इस मामूली कारखाने में काबिल कद्र और खूबसूरत चीजें मौजूद हैं। आपने इस कूजे की कीमत नहीं बताई। अगरचे आपके शाया निशान नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप इसे तोहफे के तौर पर कबूल कर लें। एक ऐसे कीमती तोहफे का कबूल न करना जो आप जैसे माहिर फनकार से मिला है, अदब से दूर है। मुझे कबूल है। क्या आप मेरे लिए जुपिटर या अपोलोन का मुजस्समा बना सकते हैं? मैं एक कुजागर हूँ, मुजस्समा बनाना मेरी बस की बात नहीं। शायद आप नहीं चाहते। अब अगर आप हजरात का हुक्म हो तो फिर इताअत के सिवा कोई चारा भी नहीं। एक खूबसूरत मुजस्समा बना, कल सुबह मैं उसे लेने आऊंगा। इतने ज्यादा मुजस्समे काफी नहीं थे। मैं हमेशा इन रंग बिरंगे मुजस्समों से दूर रहा हूँ, और आप यहाँ भी मुझे मुजस्समे का हुक्म दे रहे। दिखावे के लिए रखने में क्या हरज है? दूसरे रोज जब हम मुजस्समा लेने गए तो अजीब इत्तेफाक हुआ। हाँ तो उस्ताद, हमारा मुजस्समा तैयार हुआ या नहीं? बिल्कुल अली जनाब, तैयार है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। ये कैसा मुजस्समा बनाया है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है अली जनाब। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुजस्समा मेरे बस में नहीं।
तुम चाहते हो कि इस मस्खरे को खुदाओं के मुजस्समे के तौर पर घर ले जाऊं? आली जनाब, ये मुजस्समा जुपिटर का था। आपको डर नहीं लगता कि आपसे इंतकाम ले या कोई नुकसान पहुंचाए? नहीं, तुम यकीन रखो कि ये बदसूरत मुजस्समा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैंने इबादत गाहों के खुदाओं में इससे ज्यादा बदसूरत मुजस्समे देखे हैं। यानी वो भी कुछ नहीं कर सकते? अपनी बातों का ख्याल रखो कूदलगर, ये बातें तुम्हारे नुकसान में। हम इन मुकद्दस मुजस्समों के सामने सजदा करते हैं, इन्हें खुदा मानते हैं, तो क्या हमें नहीं मालूम होना चाहिए ये कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि ये मुजस्समा क्यों टूट गया और अपना दिफा भी नहीं किया, और क्या इंतकाम लेगा या नहीं? जाहिरन तुम बहुत भोले नजर आते हो। ये मुजस्समे खुदा कैसे हो सकते हैं? ये लोगों के बनाए हुए खुदा हैं। बस इसका मतलब कोई हकीकी खुदा है कि जिसकी तस्वीर हम इन बुतों की शक्ल में बनाते हैं। अली जनाबान, क्या आपको नहीं लगता कि वो खुदा आप लोगों से इंतकाम लेगा? मैं आप हजरात से माजरत चाहते हुए एक बात सादिकाना तौर से अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है आज़ुर्दा खातिर ना होंगे। मेरा ख्याल है कि इबादत के लिए इससे ज्यादा तवाना खुदा को इंतखाब करना चाहिए। नहीं मालूम किस तरह का खुदा, लेकिन ये जानता हूं कि वो खुदा इतना ताकतवर और कादिर और तवाना हो कि अपना भी दिफा कर सके और अपने बंदों का। कैसा मुजस्समा बना दिया जो जुपिटर के अलावा हर शय से मुशाबहत रखता है। निहायत घटिया और बदसूरत मुजस्समा, मगर पुरखैर व बरकत, जो शिर्क से हमारी निजात का जामिन बन गया। दुनिया ने अपनी इस ज़ीरकाना हिकमत अमली से हमको एक अजीम हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया, और वो हकीकत एक तवाना खुदा को पाने की तलाश थी। इस वाक़े के बाद मैं हमेशा दुनिया को देखता हूँ और मुतवातिर खुदाए यगाना से करीब तर होता जा रहा हूँ। मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए, हत्ता मशकूक लोगों को भी गिरफ्तार कर लो। मैं चाहता हूँ शहर में एक भी ईसाई न रहे। जी आली जनाब। ज्यादातर शहर की तैयारियां और मरम्मत ईसाइयों के हाथों में है। उम्मीद है कि इस्तकबाल की तकरीब में कोई दुश्वारी न होगी। शहंशाह की मौजूदगी में नुमाइश और बहादुरों की लड़ाई भी इस्तकबाल या तकरीब का हिस्सा है, लिहाजा कुछ मसीही भी गिरफ्तार होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, तमाम उन लोगों को जो अदोनिया से राब्ता रखते हैं गिरफ्तार कर लो। उनकी गिरफ्तारी से बहुत से पहचाने जाएंगे। मुझे यकीन है कि मैक्सिमिलियन और हेलन अपने हम मजहब लोगों की गिरफ्तारी के सिलसिले में लाताल्लुक नहीं रहेंगे। देखना है वो कहां तक बर्दाश्त करते हैं। बहुत खूब, देखूं क्या करते हो। चलो। जी आली जनाब। वो मसीही है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जुपिटर के सामने नहीं झुका, वो मसीही है। तू झूठ मत बोल, यहाँ से निकल जा। क्यों ले जाते हो उसे? क्यों ले जाते हो उसे? छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पकड़ लो उसे, जाने मत देना। कहाँ भाग रहा है? ये मसीही है। ठहर जाओ, कहाँ जाएगा भाग के? इसे जाने मत देना, ये मसीही है। पकड़ लो इसको, इसे जाने मत देना। कहाँ जाएगा भाग कर? ये इसे गिरफ्तार कर लो। मत मारो इसे।
क्यों मारते हो मुझे? मत मारो। मत मारो मुझे, क्यों मारते हो मुझे? जिसको भी देखते हैं मसीही निकलता है। क्या पता बहन, शायद उनकी तादाद इनसे भी ज्यादा हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने सारे गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी लगता है कि ये फितना शहनशाह के आने तक खत्म न होगा। कितनी बेइज्जती है। तुम्हारे पास बस यही रंग है? चलो तेज तेज चलो, चलो जल्दी जल्दी। चला। ऐसा क्यों सोचते हो कि रोमी बुत परस्तों के खिलाफ फिलहाल कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हम क्यों अपने हम मजहब लोगों की कत्लो गारत गरी का तमाशा देखते रहें? रोमियो के खिलाफ कदम उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो नतीजा क्या निकलता है। दकियानूस के महल में हमारी मौजूदगी हमारे लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। मौजूदा हालात में हम मुख्तलिफ तरीकों से मुवाहिदों की मदद करते हुए उनके खिलाफ की जाने वाली बाज़ कार्रवाइयों को रोक सकते हैं। हमें हर वो इक़दाम से परहेज करना चाहिए जिससे मौजूदा हालत खतरे में पड़ जाए। हाँ, अगर कोई अहम नतीजा सामने आता है तो हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बेहतर यह है कि हम में से हर एक शख्स अपने अपने काम की जिम्मेदारी ले ले। ठीक कह रहे हैं। जनाब तलमीखा का काम वाज़ेह है। वो दरबार के खास तबीब होने की हैसियत से महल की निगरानी कर सकते हैं और वहां के अखबार हम तक पहुंचा सकते हैं। वो हवादिस और इक़दामात जो हमारे हम मजहब लोगों के खिलाफ होते हैं उसको रोकना मेरी जिम्मेदारी है, और ये भी कोशिश करूंगा कि मसीहियों की पोशीदा महफिल में शिरकत करूं। तमाम ईसाई मुबल्लिगीन और शहर के बहादुर जवानों से राबिता करना जनाब मैक्सिमिलियन की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों सोचते हो कि फिलहाल रोमी बुत परस्तों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हम क्यों अपने हम मजहब लोगों को इस कदर ईज़ाएं देने और हलाक करने का तमाशा देखें और छुप रहे? ये लो। चलो आगे बढ़ो। चलते क्यों नहीं? आओ, तुम आगे बढ़ो, जोर से चलो, जल्दी चलो, चलो, चलते रहो, चलो जल्दी, चलो पकड़ लो इसे भी। ये देखो, नहीं इसे छोड़ दो, इधर ले लो, चलो इधर। जाने दो। हटो यहां से, रास्ता दो। ए देखो, ये कहां जा रहा है? ए देखो, ये कहां जा रहा है? यही है, ये मसीही है, ये मसीही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ लो, इसको मत जाने दो, ये मसीही है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं मसीही नहीं हूँ। शिकायत करूंगा, मैं मसीही नहीं हूँ।
ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ जाओ, सीधे जाओ ऊपर। कुछ भी ये चलो हटो यहां से। कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे पकड़ो, ये मसीही है। दो टके के जासूस, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बता बता मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं जनाब टेकेरोस उसके दामाद मैक्सिमिलियन का आदमी हूँ। मुझे क्यों पकड़ते हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आली जनाब, मैं मैक्सिमिलियन का आदमी हूँ, छोड़ दो मुझे। आली जनाब, ये मुझे पकड़ रहा है, छोड़ दो। ये मसीही है आली जनाब, मैंने इसको दुनिया के पास जाते देखा है। जी आली जनाब। ये क्या हो रहा है यहाँ? आली जनाब, मैं मैक्सिमिलियन का आदमी हूँ, छोड़ दो मुझे। आली जनाब, ये मुझे पकड़ रहा है, छोड़ दो। ये मसीही है आली जनाब, मैंने इसको दुनिया के पास जाते देखा है। जी आली जनाब। जरखीन ने इसकी शनाख्ताई की है। नहीं, मैं इसे जानता हूँ, ये मसीह नहीं है, जनाब मैक्सिमिलियन का नौकर है। आली जनाब, वो एक मसीही है, उसको अच्छी तरह जानता हूँ। वो दुनिया के घर आता जाता है। वो जनाब दकियानूस के दामाद मैक्सिमिलियन के घर का खादिम है और तुम उसको मसीही कहते हो? वो आजाद है। चलो, चलते क्यों नहीं? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चलो। परेशान ना हो, ये सब अदोनिया की वजह से है। जब तक उसे गिरफ्तार ना कर लें चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द यहाँ से चले जाओ। इताअत आली जनाब। अगर खरीदना नहीं है तो क्यों बार बार देख रहे हो इसे? रख दो इसे। ये सामने मकान किसका है? मैक्सिमिलियन का। गैलिस को तुम जानते हो? वही रहता है। लो मिल गया, लो मिल गया।